So today we are going to discuss gametogenesis, which is a topic from human reproduction. It's completely NCERT based and a very high yield topic. So if we go on to the data based on the NEET PYQ analysis from 2020 to ReNEET 2026, gametogenesis is one of the highest yield topics from ह्यूमन रिप्रोडक्शन. अगर और अच्छे से डेटा की बात करें तो अगर ईयर वाइज काउंट पे जाए तो gametogenesis questions in NEET amounts to in 2025 it was about 1 to 2 questions. In 24 it was 2. 2023 it was 1 question. 2022 it was 2 questions. 21 it was about 2 to 3 questions. In 2020 it was 2 questions, and in ReNEET 2026 it was 1 to 2 questions. So there were about total 11 to 13 questions from gametogenesis alone from 2020 to ReNEET 2026. So that makes it a very high yield topics. मतलब अगर मोटा मोटा पकड़े तो 10 मार्क्स तो होने ही चाहिए इस टॉपिक से. So we would go NCERT line by line, और let's see if we can get this topic very clear. So फर्स्ट हम लोग NCERT में स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट करेंगे. सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स. वी ऑल नो दैट. That is sperms and ovum respectively by the process called gametogenesis. So that is the basic definition of gametogenesis. So in testis, the immature male germ cells or the spermatogonia produce sperms by spermatogenesis. तो फुल प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं. स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन्स एट प्यूबर्टी. सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सो अगर पूछे कि एट विच स्टेज इन अ मेल डज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन, सो वो प्यूबर्टी में होगा. स्पर्मेटोगोनिया और सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम इज प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल. देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी स्किप हो जा सकते हैं. सो I have highlighted this point is where does this actually begin? This begins at the inside wall of seminiferous tubules and multiply by mitotic divisions and increase in numbers. तो initially mitotic division हो रहा है स्पर्मेटोगोनिया का और वो इंक्रीज कर रहा है नंबर में. फिर ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, मतलब 46 chromosomes. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. So some of the spermatogonia called primary spermatocytes, देखिए important read, periodically undergo meiosis. Okay, so हमेशा नहीं होगा, periodic दिखेगा undergo meiosis. A primary spermatocyte completes the first meiotic division, which is a reduction. Of course meiotic division को हम reduction division में बोलते हैं, which leads to the formation of two equal haploid cells. Important है ये line, two equal haploid cells called secondary spermatocyte which have only 23 chromosomes. हाफ हो जा रहा है तो 23 chromosomes each. अब ये जो secondary spermatocyte फॉर्म हुआ वो undergo second meiotic division which is actually somewhat equal to mitosis, but उसे mitosis नहीं बोलेंगे. That is the second meiotic division, मतलब meiosis 2, which produces 4 equal haploid spermatids, मतलब n number और 23 number, whatever you say. Okay, so the spermatids are transformed into spermatozoa sperms by the process called spermiogenesis. After spermiogenesis, मतलब sperm का genesis, इसलिए spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm head becomes embedded in the Sertoli cells. कहाँ embedded होता है important है. Sertoli cells में sperm का head embedded हो जाता है. वो उसी टाइम मतलब फॉर्मेशन के साथ साथ ही वो रिलीज नहीं होता है. आफ्टर फॉर्मेशन द स्पर्म हेड इज एक्चुअली एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन. तो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस है. स्पर्मिएशन एक्चुअली कोई फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं है. स्पर्मिएशन इज एक्चुअली द रिलीज ऑफ दिस स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा हमने पहले भी देखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स फॉर मेल्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज. ये हार्मोनल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे. सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स. सो GnRH का प्यूबर्टी में एक सर्ज होता है. सो GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि हमें पता है. The increased level of GnRH then acts on the anterior pituitary gland and stimulates secretions of 2 gonadotropins. तो 2 gonadotropin को GnRH स्टिमुलेट करेगा. तो क्या है वो? लुटेनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH.
अब LH किस पर एक्ट करता है और FSH किस पर एक्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है. LH एक्ट्स ऑन द लीडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स. यही एंड्रोजन एक्चुअली इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड FSH उसका फंक्शन क्या है, वो सर्टोरी सेल्स पर एक्ट करता है. स्टिमुलेट्स, ये नेक्स्ट पेज में है, स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. तो इसका फंक्शन क्या है कि FSH एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स और वो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म का रिलीज में हेल्प करता है. तो कुछ अगर की पॉइंट्स हम लोग समराइज करें स्पर्मेटोजेनेसिस, देन साइट क्या है, सेमिनिफेरस टेब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, मोर इम्पॉर्टेंटली द इनर वॉल, अगर बहुत स्पेसिफिक बोले तो. कब स्टार्ट होता है, इन मेल्स एट प्यूबर्टी. हॉर्मोन्स क्या क्या है, FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड LH ऑन लेडिक सेल्स. एंड एक्चुअली लेडिक सेल्स सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटोजोआ देगा और 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटोजोआ देगा. ओके, सो क्योंकि एक स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो रहा है और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो रहे हैं, तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय कैलकुलेशन गिव्स मी 4 स्पर्मेटोजोआ. और एक्रोसोम कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये एक्चुअली स्पर्म का पार्ट है. एक्चुअली इज फॉर्म फ्रॉम गोल्जी apparatus. ये बहुत टाइम क्वेश्चन में देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं यहाँ एक कुछ पॉइंट्स है स्पर्म को लेकर और कुछ डेटा भी है. एंड इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. आई हैव मार्क्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस. अगर आप देखें तो यहाँ है फुल स्पर्म का डिस्क्रिप्शन विद डायग्राम. ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये हेड है, नेक है, टेल है, mitochondria. Actually mitochondria is very important because it is contained in the middle piece of the sperm and it helps in the energy source for swimming of the sperms in the female genital tract. So sperm का full description NCERT में line by line क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं. So it is a microscopic structure of course, ऐसे naked eye से दिखेगा नहीं, और उसके 3 और 4 main structures हैं और सब पार्ट्स हैं. क्या है, हेड है, नेक है, अ मिडिल पीस है एंड अ टेल है. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेंबर, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म. ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट्स में है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, होल बॉडी ऑफ द स्पर्म इज एनवलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. ये डिप्लॉइड नहीं है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्पर्म is in haploid structure, तो haploid nucleus होगा. And the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. The acrosome is filled with enzymes that help in the fertilization of the ovum. तो अगर बोले कि which structure contains enzyme which helps in the fertilization of the ovum, तो वो acrosome होगा. फिर और एक important point है, the middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for movement of the tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगा, और एनर्जी नहीं होगा तो स्पर्म स्विम नहीं कर पाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्पर्म. फिर एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो देता है, मैंने लिख कर भी रखा है यहाँ, डेटा बेस्ड क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आए भी हैं. दैट द ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 3 million sperms during a coitus, of which for normal fertility, अगर the male is normally fertile, फिर उसका जो भी है, सपोज x नंबर ऑफ स्पर्म्स 200 to 300 मिलियन के बीच में जो भी है, उसका 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज और 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा क्वेश्चन आता है, मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अच्छा, फिर स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सिक्रीशंस ऑफ, ये फुल्ली इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, कि विच ऑफ द सिक्रीशंस कंस्टिट्यूट द सीमेन. सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय विच ऑफ द विच ऑफ द सिक्रीशंस, और कौन से सिक्रीशंस उसमें होते हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट. ओके, मेन कोई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द actually the transformation or the transportation. It is the accessory ducts which are actually transporting the sperms from the seminiferous tubules. कौन से secretions are constituting the semen? वो है secretions from the epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate.
एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर द सीमेन फॉर्मेशन बट एक्चुअली फॉर also for essential for maturation and motility of the sperms. The seminal plasma along with the sperms constitute the semen. So semen is actually not only the seminal plasma or not only the sperms. Sperms plus seminal plasma together is known as semen. और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स or the male accessory ducts and the functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones on the androgens. So that's all about spermatogenesis. Now we are coming to oogenesis. So the process of formation of, देखिए यहाँ पर हमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है इन oogenesis. क्या है? स्टेजेस, द बिगिनिंग, मतलब कब बिगिन होता है इन अ फीमेल, कौन से स्टेजेस में अरेस्ट होता है, कुछ डेटा दिए हुए हैं, वो क्या क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट, MCQs में आते हैं. So the process of formation of a mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. बहुत सारे points of difference है from spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million, देखिए, it's not a million, it's a couple of million, मतलब 2 million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. No more, ये important है, no more oogonia are formed and added after birth. जो हो गया बर्थ से पहले बस उतना है. These cells start division and enter into the prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at this stage. तो अगर पूछे कि कौन से स्टेज में, देखिए थर्ड पॉइंट है, अरेस्ट कौन से स्टेज में होता है, so we would say it's about prophase 1 of the meiotic division एंड टेम्पोरली वहाँ अरेस्ट हो जाता है. एंड उस स्टेज में हम उसे बोलते हैं प्राइमरी oocytes. ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. तो जब ये प्राइमरी oocyte पर एक लेयर आ जाएगा ग्रैन्युलोसा सेल्स का, हम इसे प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे. अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी से प्यूबर्टी तक, बर्थ से प्यूबर्टी तक जो फेज़ है उसमें ये बहुत सारे फॉलिकल्स डीजेनरेट कर जाते हैं. देयरफॉर एट प्यूबर्टी, मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे डीजेनरेट कर जाते हैं. तो जो इनिशियली 2 मिलियन अराउंड थे एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट प्यूबर्टी वो अराउंड रिड्यूस हो जाते हैं 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स इन ईच ओवरी. अगर टोटल पूछेगा तो इसका डबल हो जाएगा, याद रखें. The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles. तो जब ये primary follicles के ऊपर और granulosa cells का layers आएगा और new theca formation होगा, तो इसको हम लोग secondary follicle बोलेंगे. The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized, तो अगर characterized by a fluid filled cavity called antrum. तो अगर पूछेगा कि tertiary follicle का एक significant feature बताइए, तो उसका आइडेंटिफाइंग फीचर यही है कि उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहेगा जिस इज नोन एज एंट्रम. द थेका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थेका इंटरना एंड आउटर थेका एक्सटर्ना. तो याद रखिए थेका लेयर भी इट्स अ बाई लेयर और बाइलैमिनल लेयर. थेका लेयर उसमें इनर थेका इंटरना होता है एंड आउटर थेका एक्सटर्ना होता है. इट इज़ important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size. अभी तक हमने साइज़ का कुछ बात नहीं किया था. ये टर्शरी फॉलिकल के स्टेज के आने के बाद भी हम इसकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं. सो नाउ द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिविजन. अब फर्स्ट मियोटिक डिविजन कंप्लीट हुआ. सो इट इज़ एन अनइक्वल डिविजन. ये याद रखें, इट इज़ नॉट एन इक्वल डिविजन, इट इज़ एन अनइक्वल डिविजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ